لیے ہمارے ساتھ چیئرمین جی ایس او لاہور جوید صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو بریک ڈاؤن اتنا بڑا ہوا, یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ یہ پورا دن لائٹ نہیں آئی, اس کے بعد آج کے دن بھی 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے لائٹ آ رہی. آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا بریک ڈاؤن کہ پورا ملک یعنی کہ پورے 24 گھنٹے اندھیرے میں ڈوبا رہا؟ تو کیا مسئلہ پیش آیا تھا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. کیا مسئلہ بنا تھا اور خوشخبری یعنی کہ آج آپ نے ہمیں سنا دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر بھائی, پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ جب بھی کوئی ایسے عوامی ایشو ہوتے ہیں آپ الحمدللہ ہر جگہ اس جگہ پائے جاتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے آپ بہت کام کر رہے ہیں. دیکھیں بیسیکلی ہوا کیا کہ ایک سسٹم ہے ہمارے ہاں, یہ جو ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے جنریشن بنتی ہے وہ ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے جو ہے وہ آگے تقسیم ہوتی ہے. تو ایک ہماری ٹرانسمیشن لائن ہے جو جس کے اوپر جو ہمارے آئی پی پی سے جو انٹرنیشنل پاور پروڈیوسر ہے, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو ہے وہ اس کے اوپر تھے. جام شورو گدو سے جاری تھی کوئٹہ, وہاں جام شورو کے مقام کے اوپر اس میں فالٹ آیا, جس کی وجہ سے جب صبح کا ٹائم تھا ہمارے کنزمپشن کم ہونے سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر پھر ہمارے وولٹیج انکریز کر جاتے ہیں. صحیح. جب وولٹیج کرتے ہیں یہ تمام سسٹم جو ہے کپلنگ کے ساتھ ہے, جتنے آئی پی پیز ہیں سارے اس لائن کے اوپر تھے, وہ 1 بائی 1 پھر ٹرپ کرتے گئے جو چل رہے تھے. اس کے بعد جب یہ صورتحال ہمارے نیشنل ریجنل کنٹرول سینٹر ہے RCC اسلام آباد, اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے فوری طور پہ جو 2 ہماری باقی ٹرانسمیشن لائن تھی جو بنگلہ اور تربیلا کی تھی انہوں نے بائی ہینڈ بند کر دیا. صحیح. اور جہاں تک آپ پوچھیں کہ ٹائم اتنا کیوں لگا, تو ٹائم اس وجہ سے لگا کہ پھر جب ایک چیز آپ نے بائی ہینڈ بند کی, پھر آپ نے فالٹ ریکٹیفائی کیا, اس کے بعد جب آپ نے وہ چیز چلانی تھی تو جب تربیلا کو چلانے کی کوشش کی گئی وہ نہیں چل سکا, چلا بند ہو گیا. وہ 5 ٹرائیوں کے بعد وہ چلا. تو مین فالٹ یعنی کہ تربیلا میں آیا؟ نہیں, مین فالٹ تربیلا میں نہیں تھا, وہ ٹرانسمیشن لائن میں تھا جو گدو سے جا رہی تھی کوئٹہ, اس کے اندر فالٹ تھا. صحیح. اس کے اندر بریک ڈاؤن ہو گئی کنڈکٹر کی حادثاتی طور پہ, تو وہ اس کی وجہ سے فالٹ تھا. صحیح. پھر وہ جب فالٹ ہوتا ہے تو وہ آگے کیری کرتا ہے, پھر تو وہ جب کیری کر رہا تھا تو اس کو بچانے کے لیے سسٹم کو منگاتے ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح وہ جو ٹرانسمیشن لائن تھی اس کے اندر پرابلم آئی ہے. کیونکہ دیکھیں کنڈکٹر ہوتا ہے سلور کا, گرمیوں میں یہ جب دھوپ پڑتی ہے تو یہ لوز ہو جاتا ہے کنڈکٹر, اور سردیاں جب آتی ہیں تو یہ کنڈکٹر ٹائٹ ہو جاتا ہے. ٹائٹ ہونے سے اس وقت کسی وقت بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. جب گرمیاں آتی ہیں اس وقت یہ لوز ہو جاتا ہے, لوز ہو کے ہوا سے آپس میں ٹکراتا ہے, شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے, تب بھی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ بات کی کہ یہ اس طرح کا سین اگر ہوتا ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں کلوز ہو جاتا ہے یا گرمیوں میں لوز ہو جاتا ہے, تو پہلے کیوں نہیں چیک کیا جاتا؟ یہ بالکل اس طرح اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو. نارمل آدمی جا رہا ہوتا ہے 10-15 منٹ بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو آپ کیا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کس وقت فالٹ آنا ہے کس وقت نہیں آنا, اس پہ آپ کوئی جو ہے نا چیک نہیں رکھ سکتے فالٹ آنے کے اوپر. بالکل ایسے جی ناظرین. تو یہ ساری خبریں یعنی کہ کنٹروورسی پھیلائی جا رہی تھی, یعنی کہ لوگوں میں سنسنی پھیلائی جا رہی تھی. ایک تو انٹرنیٹ بھی بند ہوتے ہیں, اگر کسی کے پاس خبر جاتی ہے تو اس طرح کی ہی خبر جاتی ہے, وہ پہلے پریشان ہوتا ہے. سر ہم نے دیکھا موم بتیاں غائب ہو گئی مارکیٹ سے. موم بتیوں کا ایشو یہ تھا کہ ابھی یہ ڈسکس کر رہے تھے گھر میں, ایک تو موم بتیاں بن نہیں رہی کیونکہ پچھلے دنوں میں کچھ لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی, لوگوں کو UPS آ گیا, سولر آ گیا, موم بتی ایک تو بن کم رہی تھی, اور کم بننے کے بعد شاپس پہ اویلیبل نہیں تھی. لوگوں کو یہ لگا شاید مارکیٹ سے غائب ہوگی, لیکن میرا اپنا انالیسس ہے کیونکہ وہ بن ہی کم رہی ہے تو وہ اس لیے اویلیبل کم تھی. لوگ مارکیٹ سے بھی نہیں لا رہے تھے نا, مارکیٹ سے بھی نہیں لا رہے, اس لیے وہ اویلیبلٹی اس کی کم تھی. اب کسی کو ایک دم تو پتہ نہیں تھا کہ ایسا شارٹ فال آ جائے گا کہ ضرورت پڑ جائے گی, تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو کم ملی. اچھا ٹھیک ہو گیا کہ یہ ہر سال اس طرح کا یعنی کہ پھر بریک ڈاؤن ہمیں برداشت کرنا پڑے گا؟ نہیں, لازمی نہیں ہے, بائی چانس ہے یہ کہ کبھی پتہ بھی چل جاتا ہے. دیکھیں پتہ نہیں لگ سکتا فالٹ, یہ خود کے شملے کی طرح ہوتی ہے. ٹرانسمیشن لائن میں اگر فالٹ آنا ہے, کوئی بریک ڈاؤن ہونی ہے, تو وہ آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا. سرپرائز دے گی, وہ سرپرائز دے گی آپ کو. کیا بات ہے. اچھا اب آگے ایک سرپرائز حکومت دینے جا رہی ہے, 7 روپے بجلی مہنگی کرنے جا رہی ہے. دیکھیں اس کا تو ابھی جب ہوگی تب بات ہے, ابھی تو وہ بھی ایکسپلیشن ہے لوگوں کی. نہیں, یہ چیزیں وہ نہیں ہوتی, ہاں یہ بھی ایک وہ خود کا شملہ ہی ہے. یہ دیکھیں یہ تو اب وہ گورنمنٹ جو حکومت وقت ہے وہ بہتر بتا سکتی کہ اس پہ ان کی کیا پالیسی ہے, کیوں مہنگی کر رہے ہیں, کیا وجہ اس کے. IMF جو ہمارے سر ہیں بوس, یہ تو دیکھیں جی اب اس کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ہمیں اس لعنت سے نکلنا پڑے گا اگر ہم اپنے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر مہنگی ہوگی بجلی, 2 نقصانات ہوتے ہیں, ایک اس کی تھیفٹنگ بڑھ جاتی ہے, سیکنڈلی ہماری انڈسٹری کو نقصان ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور عام آدمی کی کمر جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے, وہ اس بل دینے کے قاصر نہیں رہتے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جناب لائیو آ رہے ہیں, ہم آپ کو ایک اور یہ خبر دوبارہ
सुनाते चले जो व्यूअर्स अभी शामिल हुए हमारे साथ कि लोड शेडिंग को खत्म कर दिया जा चुका है हमारे साथ। हाँ, जो फोर्स जो ये मसला बना हुआ था 24 से 27 घंटे जो दरकार थे, उस 27 घंटे से ज्यादा ही मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है और वो पूरा भी हो चुका है। और हमारे साथ चेयरमैन जीएसओ लाहौर लेस्को मौजूद थे जवेद साहब, तो इनसे हमारी बात जारी थी कि ये लोड शेडिंग क्यों की गई और जो कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही थी कि हैकर्स आ गए, इस तरह की चीजें आ गई हैं, वो क्यों फैलाई जा रही थी, उनकी भी यानी कि इन्होंने जवाब दिया, उसका भी खात्मा हो चुका है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो गालियां होती हैं वो आपको सुननी पड़ती हैं लोगों की। देखिए, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, उनको तो सिस्टम का नहीं पता ना। हाँ। लेकिन बावजह मजबूरी, अभी चैनल पे बात हो रही थी जी, हवा चलती है आपकी बत्ती बंद हो जाती है, बारिश होती है तो आपका सिस्टम बैठ जाता है। हाँ। मैंने उनको यही बताया, देखिए हमारा जो सिस्टम चल रहा है, आपने देखा होगा पोल के ऊपर 3 तारे जा रही हैं, बिल्कुल ऐसी है, उनके अंदर गैप है, गैप किसी वजह से है, हाँ, वरना इकट्ठी भी जा सकती थी। हाँ। तो वो लोगों को इस चीज को समझना है, थोड़ा सा ना एजुकेट करने की जरूरत है। वो कंडक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, गर्मी है, कंडक्टर लूज होगा जब हवा चलेगी। इसका जो सेंट्रली जो डिस्टेंस है, जो हमने एक मखसूस इसका फासला रखा हुआ है, वो जो ही कम होगा, हमारे पास जो सिस्टम लगा हुआ है वो इतना सेंसिटिव है कि ये जो ही कम होगा वहां पे ट्रिपिंग आ जाएगी। क्या बात, सही। और जब धुंध पड़ती है तो उसके ऊपर कार्बन जमा हुआ होता है, वो धुंध पड़ने की वजह से कार्बन जो है ना वो उसके साथ चिपकता है, लिंक्स बनते हैं, तो वो उस वजह से भी जो है ना वो ट्रिपिंग आ जाती है। बारिश होती है, डोरे पड़ी होती है ऊपर, धागे, दरख्त की टहनियां, गीली चीजें, वो भी जब अर्थ बन जाती हैं तो फिर स्ट्रिपिंग आ जाती है। जो भी मसला होना है, लोगों ने आपको ही बुरा भला कहना है। डेफिनेटली वो जब इस चीज का आपको वो नॉलेज ही नहीं है, आप समझेंगे नहीं और समझाया ही नहीं गया, तो वो अदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें रही हैं उनकी कोशिश थी कि इसको निष्कारी करके बेच दिया जाए। हाँ, निष्कारी की बात है। लेकिन बात यह है कि हमें इस परसेप्शन के साथ गंदा किया जा रहा है आवाम में। अभी आप कोई भी उठा के देख रहे हैं, कहते हैं वापडा वाले चोर, वापडा वाले चोरी खुद करवाते हैं, वापडा वाले जनाब जान के बिजली बंद करते हैं, वापडा वाले काम नहीं करते। आप तो यूनिट फ्री मिल जाते हैं, लोगों के विच पा देंगे। लेकिन देखिए, वो यूनिट्स फ्री मिलते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई बंदा होता है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में आप लगा लें, उसको वहां पे होटल में है तो उसको खाना फ्री होता है, PIA में है उसको फ्लाइट्स फ्री हैं, हर डिपार्टमेंट की, क्योंकि वो वहां के लिए सर्व कर रहा होता है। और ये भट्टो साहब ने हमारे लॉ के अंदर शामिल की थी, जो हम फ्री यूनिट नहीं लेते, मैं आपको तस्दीक कर दूं, हमारी सैलरी से इसके पैसे काटे जाते हैं। सही। अच्छा, ये अगर निजकारी कर देते हैं तो ये सारी साइशें खत्म हो जाएंगी मेरे ख्याल से। देखिए, साइशें तो खत्म होंगी, लोगों को मुश्किल होगी। अच्छा। बिजली और मजीद महंगी हो जाएगी। सही। अभी आपके घर जो लाइनमैन आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके आपकी बिजली ठीक करता है। हाँ जी। फिर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली ठीक नहीं होगी। सही, तो वो पैसे लेगा। हाँ, और जो लोग गिला करते हैं कि जी टेलीफोन नहीं उठाते, हमने उन्हें आज भी मैंने कहा है चैनल पे कि अब स्टाफ नहीं देंगे टेलीफोन कैसे, मेरे पास बंदे ही 3 है, फीडर्स बंद है, ग्रिड पे बंदा 1 है, वो कैसे फोन उठाए, उसने बाकी काम भी करने हैं, किस तरह, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये निजकार की बात थी, अब सर्दियों की भी आपने एक बात की। सर्दियों में जो पूरे हफ्ते में एक दिन यानी कि कुछ इलाके मखसूस हैं उसमें लाइट जाती है, तो उस हवाले से ये भी बताएं कि जनरल में देखिए, हम ना 2 दफा शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं अपने तमाम फीडर्स की, अपने तमाम सिस्टम की, एक दफा गर्मी आने से पहले और एक दफा सर्दियां जाने के बाद। सही। ठीक है, तो वो जो हमारी शेड्यूल मेंटेनेंस चल रही होती है, वो रेगुलर मेंटेनेंस है, उसको करना हमारे लिए जरूरी है, वरना सिस्टम है वो एकदम बताएगा कि मैं जैसे आप कह रहे हो, फिर एकदम, हाँ जी, वो एकदम बताएगा, इसलिए वो शेड्यूल मेंटेनेंस जरूरी होती है। गर्मियों में कहते हैं दरख्त लगाओ, तो सर्दियां तुसी वो तोड़ देंगे हो, काट देंगे हो। वो ब्रांचेस उसकी काटनी पड़ती है ना, वो जो हमारे कंडक्टर के ऊपर आ जाती है, वो बारिश होती है, वो तार लगेगी साथ, तो वो फिर ट्रिप कर जाएगा हमारा सिस्टम, इसलिए वो काटते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ चेयरमैन जीएसओ लाहौर जवेद साहब मौजूद थे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो एक खुशखबरी थी कि लोगों को ये बता दिया जाए कि लोड शेडिंग को खत्म कर दिया गया है। अगर किसी इलाके में लोड शेडिंग हुई है, वहां भी अभी किसी भी वक्त लाइट आ जाएगी, किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि लोड शेडिंग खत्म कर दी जा चुकी है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को एक मैं बात मजीद कहना चाहता हूँ निजकारी के हवाले से। देखें, लोगों को जो परसेप्शन है ना, वो उनका परसेप्शन सिर्फ जो मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें रही हैं उन्होंने खराब किया। अगर हमें ये स्टाफ दे दें प्रॉपर, और हमारे प्रॉपर जो हमने 50,000 FIRs करवाई हैं उनको बैकअप दें, चोरी को रोकें, तो महकमे को निजकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें स्टाफ दें, हम इनको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देंगे। ये चीजें हमें नहीं प्रोवाइड की जा रही, जिसकी वजह से ये आप फीडर्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। किनको दे रहे हैं?
देखिए जो लोग बंदा लेगा फीडर, आपको सपोज मैं कहता हूँ आप ये फीडर ले लें, इस पे आपने चोरी रोकनी है, तो आप कैसे रोकेंगे? आप बदमाशी से रोकेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसी है। आप अपने बंदे लेकर आएंगे, बदमाशी करेंगे, फिर वो चोरी नहीं तो रोकेंगे। इसका मतलब है ना कि हमारे मुल्क में कानून कमजोर है। कानून कमजोर है। हम यही चाहते हैं कि हमें बैकअप दिया जाए, हमारे मजिस्ट्रेट हों, हमारे जज हों, जो इसको सुने और इस पे देखें। रेलवे की पुलिस है, उनके अपने थाने हैं, सुई गैस के अपने जज हैं, वो डिसीजन करते हैं। और वासा वाले की भी सुना है आपने वो इसी तरह हमें सिस्टम दें तो चोरी जब जजा और सजा का वो हो जाएगा निजाम कायम, तो लोग खुद डरेंगे। जो तारा पहनी है उन्होंने। देखिए ना अभी जो दफा लगती है बिजली चोरी होने पे, वो काबिल जमानत है। ऐसे ही है। जब वो ना काबिल जमानत होगी, जुर्माना दे के छूटेंगे, तो फिर हर बंदा डरेगा। लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे लाइनमैन भी मुलविस होते हैं। देखिए बात सुने, हर जगह अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। बिजली चोरी तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारा लाइनमैन उनके साथ ट्रीटमेंट ना करे। ये लाजमी नहीं है। अच्छा। देखिए ये लाजमी नहीं है। सही। अब लोग, आप खुद बहुत तेज हैं, आपको बताया कि एक तो जब बिजली महंगी होती है उसकी वजह से लोग खुद मजबूर हो जाते हैं इस काम करने भी होती है। बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको महंगी ना करें। आप इसको महंगी करेंगे तो चोरी ज्यादा बढ़ेगी। सही। तो वो कानून है नहीं, या तो आप कानून सख्त करें चोरी रोकने का, कानून सख्त होगा तो फिर चोरी भी नहीं होगी, फिर आप रेट बढ़ाना चाहें तो रेट बढ़ा लें। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि लोगों की कमी है, यानी कि भर्तियां की जाएं, तो वो भर्तियां कौन करेगा? जो हुकूमतों को हमने इदारे देखे हैं कि उनके अपने यानी कि दफातर फुल हैं, तो अगर वही बंदे इधर भर्ती कर दिए जाएं तो। हाँ देखें, अभी जेनकोस हमारी किस जगह पे जेनकोस थी, वो खत्म करके अमला शामिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से लेस्को के पूरे रीजन में कोई जेनकोस नहीं थी। हाँ जिनकी वजह से वो यहाँ अमला एडजस्ट नहीं हो सका और हमारी भर्ती नहीं हुई। वैसे हमारे अभी उन्होंने जो HR डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक टेस्टिंग एजेंसी को फाइनल कर दिया है। अब अनकरीब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जो नई BOD आई है वो इसके ऊपर काफी काम करेगी और नई जो है भर्तियां होंगी। ये कितने सालों तक काम करेगी? क्या चीज? ये भर्तियों वाले देखिए उन्हें इमरजेंसी तौर पे करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो दारा लोग रोज रिटायर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो वो इस तरह दारा तो बैठ जाएगा फिर। बिल्कुल जैसे 4 बंदों का एक बंदा काम कर रहा है, बिल्कुल इस तरह ही है। 4 बंदों की जगह एक बंदा काम कर रहा है। और हमें जो है उस पे ग्रिड के ऊपर भी हमें, हालांकि हमारी जो ड्यूटी है वो सख्त है ग्रिड्स के ऊपर, हमें वहां पे डेंजरस अलाउंस नहीं दिया जा रहा। हमें वहां पे जो प्रॉपर ओवर टाइम्स हैं, ईद के दिन लोग ड्यूटी करते हैं, शिवरात पे ड्यूटीज करते हैं, वो प्रॉपर ओवर टाइम्स टीए नहीं दिए जा रहे। तो ये भी इनको करना पड़ेगा, इस तरफ देखना पड़ेगा। ये करेंगे तो लोग जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिवली देखा जाता है कि लाइन पे भी ये एजेड लोग ही चढ़े होते हैं, यानी कि जवान लोग हमें नजर नहीं आ रहे इदारे में बाप डाल। नहीं, ये हमने हमारी यूनियन ने एक लॉ इस पे पास करवाया हुआ है कि जो 55 साल से ज्यादा उम्र का बंदा है वो लाइन के ऊपर नहीं चढ़ेगा। सही। तो वो उससे नीचे वाली जो एज वाले तो थले कोई बचनगे तो फेरी ना। डेफिनेटली हम तो कह रहे हैं भर्ती करेंगे तो नया ब्लड आएगा ना, वही तो कह रहे हैं, न्यू ब्लड आएगा। भर्ती नहीं करेंगे तो न्यू ब्लड कहाँ से आएगा? बिल्कुल ऐसे ही। ये वही लोग, न्यू ब्लड अगर आपको नजर आ रहा है तो ये वो लोग हैं जो शोधा है हमारे, जिन्होंने जाने दी है, उनके बच्चे जो है यूनियन ने कानून बनवाया और उनके बच्चे जो है ना वो ना न्यू ब्लड आएगा और 55 साल भी लाइन दे उत्ते नहीं चढ़ेगा तो फिर पीछे की बचेगा? यही इसलिए तो हम कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा, फौरन इकदाम करना पड़ेगा। अगर ये फौरन इकदाम करें, इनको फीडर्स प्राइवेट आउटसोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद उसको जो है ना वो मैनेज करके देंगे। चोरी के पीछे हम अभी एक्शन में हमारे बंदे के चोरी पकड़ी, हमारे ही बंदों को मार पड़ गई। हमें बैकअप नहीं मिलेगा तो काम करेंगे। बिल्कुल ऐसी है जी। मुल्क में जो कानून है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जैसे कि अभी इन्होंने कहा जी हमने चोरी पकड़ी है, कहीं जायज बंदे को पकड़ा है, बिजली चोरी कर रहा है, वो उल्टा भापदा वाला पकड़ के ठुकाई कर दी। तो इसी मैसेज के साथ इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को, वो क्यों करना पड़ा उसके जवाबात आज जवेद साहब ने आप तक पहुंचा दिए हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।